السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 72۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، اسٹیئرنگ نیلا درانی کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے آگے کھڑی ہوئی دو گاڑیوں کے پیچھے اپنی گاڑی روک لی۔ اس سے آگے والی گاڑی کی سیٹیں تک اٹھا کر گاڑی کو چیک کیا جا رہا تھا۔ دو نوجوان گاڑی سے ذرا فاصلے پر کھڑے تھے اور ایک پولیس والے نے انہیں رائفل کی زد پر لے رکھا تھا۔ جس پولیس والے نے نیلا درانی کی گاڑی روکی تھی وہ گاڑی کے سامنے آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رائفل تو دوسرے ہاتھ میں اس نے کاغذ کا پرزہ سنبھال رکھا تھا۔ اس نے پہلے کاغذ کی طرف دیکھا، پھر گاڑی کے نمبر پلیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ نیلا درانی نے ادھر ادھر دیکھا، دوسرے پولیس والوں کے ہاتھوں میں بھی کاغذ نظر آ رہے تھے۔ نیلا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ انہیں کسی خاص گاڑی کی تلاش تھی جس کا نمبر انہوں نے نوٹ کر رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ گاڑی چوری ہو گئی ہو یا دہشت گردی کی کسی واردات میں استعمال کی گئی ہو اور وائرلیس کے ذریعے شہر بھر کی پولیس موبائلز کو اس کے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہو۔ لیکن نیلا درانی مطمئن تھی پولیس کے پاس اس گاڑی کا نمبر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ گاڑی بھی گھر سے چوری کی تھی، لیکن اس کا مالک بھی ان کی قید میں تھا، اس لیے گاڑی کی چوری کی رپورٹ لکھوائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ گاڑی آپ کی ہے؟ پولیس کانسٹیبل نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے سوالے نگاہوں سے نیلا درانی کی طرف دیکھا۔ تو کیا تمہارے خیال میں ہم یہ گاڑی چرا کر لائے ہیں؟ نیلا نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ کاغذات دکھائیے، پولیس والے نے کہا۔ وہ اس کے لہجے سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ نیلا نے ڈیش بورڈ کے خانے سے کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ گاڑی کے کاغذات وغیرہ وہ گھر پر ہی چیک کر چکی تھی۔ یہ گاڑی عبدالرحمان نامی کسی شخص کے نام تھی اور پتہ فیڈرل بھی ایریا کا لکھا ہوا تھا۔ پولیس والا کاغذات دیکھنے لگا۔ یہ گاڑی عبدالرحمان نامی کسی شخص کی ملکیت ہے، پولیس والے نے کہا۔ اب تم اس سے میرا رشتہ بھی پوچھو گے؟ نیلا درانی نے کہا۔ عبدالرحمان نامی یہ شخص اتفاق سے رشتے میں میرا شوہر ہوتا ہے۔ اگر تم کہو تم نیچے اتر آئے تاکہ تم گاڑی کو اچھی طرح چیک کر سکو۔ اس سے پہلے کہ وہ پولیس والا کوئی جواب دیتا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل ان کے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے یارا، جانے دو ان خواتین کو۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کار میں عورتوں کو بیٹھے دیکھ کر کہا، پھر نیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایئرپورٹ، نیلا نے جواب دیا۔ ناتھا گوٹ کے آس پاس فائرنگ ہو رہی ہے، ذرا محتاط رہیے، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ نیلا درانی نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرا تو خیال تھا کہ آج پھنسی جائیں گے، سلطانہ نے کہا۔ وہ کانسٹیبل تمہارے انداز گفتگو سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ کار کی تلاشی لینے پر اصرار کرے گا۔ مجھے بھی یہی شبہ تھا، نیلا نے جواب دیا، لیکن وہ ہیڈ کانسٹیبل وقت پہنچ گیا۔ اس نے ہماری مشکل حل کر دی، ورنہ آج تو واقعی پھنس جاتے۔ نیلا نے گاڑی کی رفتار کم کر دی اور پھر دائیں طرف موڑ دیا۔ مین روڈ کے رخ پر فلیٹوں کی بلند و بالا عمارتیں تھیں اور ان کے پیچھے رہائشی بنگلے تھے۔ یہ گلشن اقبال کا بلاک 10A تھا۔ یہاں سے ایک سڑک بلاک 10 سے ہوتی ہوئی عزیز بھٹی پارک کی پشت کی طرف نکل گئی تھی اور ایک دو ذیلی سڑکیں بلاک نمبر 19 کو اس علاقے سے ملاتی تھی۔ بلاک 10A اور بلاک 19 نیشنل سیمنٹ فیکٹری کی پشت پر واقع تھا۔ اس سیمنٹ فیکٹری کی وجہ سے علاقے ابھی تک پوری طرح آباد نہیں ہو سکے تھے، لیکن جب سے سیمنٹ فیکٹری بند ہوئی تھی ان علاقوں کی ویلیو بڑھ گئی تھی اور تیزی سے تعمیراتی کام ہونے لگے تھے۔ وہ پلاٹ جو برسوں سے خودرو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے اب وہاں بنگلے تعمیر ہو رہے تھے۔ نیلا نے گاڑی ایک گلی کے موڑ پر ایک زیر تعمیر بنگلے کی پشت پر روک لی۔ اس گلی میں دونوں طرف کچھ بنگلے آباد تھے، کچھ زیر تعمیر تھے اور کچھ پلاٹ اب بھی خالی پڑے تھے۔ اس علاقے میں سڑکیں ابھی تک زیر تعمیر نہیں تھی، تمام گلیاں کچی تھی۔ گندے پانی کی نکاسی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، جس سے بیشتر گلیوں میں کیچڑ رہتا تھا۔ نیلا درانی نے انجن بند کر دیا اور وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ عبدالقدوس نے سیٹیں اٹھا کر تینوں آٹومیٹک رائفلیں نکال لی اور ایک ایک فالتو میگزین میں نکال لیا اور سیٹیں درست کرنے کے بعد کار کا دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ اس اپنا فاضل میگزین پتلون کی بیلٹ میں اڑس لیا اور ایک رائفل چیک کرنے لگا۔ نیلا درانی اور سلطانہ نے بھی قمیصوں کے نیچے کمر پر اسی مقصد سے چمڑے کے بیلٹ باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے فاضل میگزین بیلٹوں میں اڑس لیے اور اپنی رائفلیں چیک کرنے لگی اور پھر وہ تینوں محتاط انداز میں چلتے ہوئے اس زیر تعمیر مکان کی دیوار کی آڑ میں آ کے سلطانہ ذرا سا باہر نکل کے گڑی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہاں تک تو ہم بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں، نیلا نے سرگوشانہ لہجے میں کہا۔ بوبی نے بتایا تھا کہ تقریباً 50 گز آگے دائیں طرف ایک اور گلی میں چوتھا مکان ہے جس کے آنگن میں سفیدے کا ایک درخت لگا ہوا ہے۔ سفیدے کا درخت صرف اسی گھر میں ہے، وہ درخت کی ہوا سے جھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عبدالقدوس نے اشارہ کیا۔ وہ درخت خاصا بلند تھا اور ہوا سے بار بار تقریباً دھورا ہوا جا رہا تھا۔ اتنی لچک سفیدے ہی کی درخت میں ہوتی ہے۔ ہاں میرا خیال ہے وہی مکان ہے، ہمیں اس گلی میں جانا ہوگا، نیلا نے کہا۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑے رہے، پھر مکان کی آڑ سے نکل گلی میں آ گئے۔ ان تینوں نے جوگرز پہن رکھے تھے، ویسے بھی گلی کی زمین کچی تھی، ان کے چلنے سے ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ گلی میں بجلی کے کچھ کھمبے تو موجود تھے مگر بلب کسی کھمبے پر نہیں جل رہا تھا۔ گلی میں تاریکی تھی، البتہ جن بنگلوں میں آبادی تھی ان کے گیٹوں پر یا برآمدوں میں مدھم روشنی والے بلب جل رہے تھے۔ دفتن سلطانہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کا پیر کیچڑ میں پڑ کر پھسلا تھا اور وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ اگر عبدالقدوس فوراً ہی اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیتا تو وہ یقیناً گر پڑتی۔ سنبھل کر، عبدالقدوس نے کہا، گلی میں کیچڑ ہے،
और अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कुछ दूर तक सुल्ताना का हाथ पकड़े रहा, फिर सुल्ताना ने इसे हाथ छुड़ा लिया और मुहतात अंदाज में चलने लगी। वो जल्दी दाएं तरफ एक और गली के मोड़ पर पहुंच गए। नैला दीवार की आड़ से झांकने लगी। दाएं तरफ की लेन में 5 बंगले आबाद थे, जिनके गेटों पर मध्यम रोशनी नजर आ रही थी। 2-3 बंगले ऐसे थे जो ज़ेरे तामीर थे। बाईं तरफ वाली लेन में पहला बंगला ज़ेरे तामीर था, अगले 6 बंगलों में आबादी थी। आखिरी बंगला ज़ेरे तामीर था और इससे आगे 2-3 खाली प्लाट थे। लेन के चौथे बंगले के आंगन में सफेदे का ऊंचा दरख्त था जो तेज हवा से बार बार झुका जा रहा था। मेरा ख्याल है वही बंगला है, नैला दुरानी ने सरगोशी की। वो भी कल रात नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले बंगले से पुलिस की गिरफ्त में आ गया होगा। क्या इसने पुलिस को पाशा के बारे में नहीं बता दिया होगा? सुल्ताना ने कहा। अगर ऐसा होता तो अखबार में इसका तज़किरा जरूर होता, नैला ने कहा। वैसे भी इस बंगले में रोशनी हो रही है, जिसका मतलब है कि वो लोग मौजूद हैं। अगर पाशा के बारे में पुलिस को पता चल गया होता तो ये मकान वीरान होता। मेरा ख्याल है वो बंगले में मौजूद है। चलो आगे बढ़ो, मगर एहतियात से। वो तीनों गली में दाखिल हो गए। नैला दुरानी सामने वाले बंगलों की लाइन के साथ साथ चलने लगी और अब्दुल कुद्दूस और सुल्ताना दूसरी लाइन के बंगलों के साथ। अब्दुल कुद्दूस आगे था और सुल्ताना इससे 2 कदम पीछे। नैला दुरानी अपनी लाइन में तीसरे बंगले के सामने पहुंची थी कि सफेद वाले बंगले में किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। इस लम्हा किसी ने बंगले का गेट भी खोल दिया। नैला दुरानी तेजी से अगले बंगले की तरफ लपकी जो ज़ेरे तामीर था। इसी लम्हा गाड़ी गेट से बाहर निकल रही थी। हेडलैम्प्स की रोशनी की जद में आ गई। वो देखो, वो औरत! बंगले में से कोई चीखा। इसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। मुझे तो ये वही पुरस्कार औरत लगती जिसने बोबी उसके साथियों को पकड़वाया था। अखबारों में भी इसका बहुत तज़किरा है। नैला ने ज़ेरे तामीर बंगले के गेट की तरफ छलांग लगा दी। पिलर्स तैयार हो चुके थे, लेकिन अभी तक गेट नहीं लगा था। ये वही है, शूट कर दो, दूसरा आदमी चीखा। इसी के साथ फजा फायरिंग की आवाज से गूंजी थी। ऑटोमेटिक राइफल से ब्रस्ट मारा गया। नैला छलांग लगाकर दीवार के पीछे पहुंच गई थी। अगर से एक लम्हा की भी ताखीर हो जाती, उसका जिस्म गोलियों से छलनी हो जाता। अब्दुल कुद्दूस और सुल्ताना पहले शोर और फिर फायरिंग की आवाज सुनकर उछल पड़े। कार इस तरह रुक गई थी कि वो आधी गेट के अंदर थी और आधी बाहर। अब्दुल कुद्दूस ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर एक घुटना जमीन पर लगाकर पोजीशन ली और कार की तरफ एक ब्रस्ट मार दिया। फायरिंग की आवाज के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। कार का सामने का एक टायर धमाके से फट गया। अंदर चलो, इसके साथी भी है। कार की तरफ से एक चीखती हुई आवाज उभरी। वो लोग कार से दूसरे दरवाजे से निकलकर दोबारा बंगले में घुस गए। अब्दुल कुद्दूस ने जिस जगह फायरिंग की थी वहां इस बंगले के गेट के दोनों कंक्रीट के बेंच रखे हुए थे। शाम को वहां ठंडी हवा में घर वाले बैठते होंगे। अब्दुल कुद्दूस ने इसकी एक बेंच की सीट उलट दी और लेटकर इसके पीछे पोजीशन ले ली। सुल्ताना भी इसके साथ पोजीशन ले चुकी थी। दूसरी तरफ नैला गोली की बौछार से बचकर जैसे ही दीवार की आड़ में पहुंची, वह एक झिंगा सी चारपाई पर सोए हुए चौकीदार उठकर चीखने लगा, खामोश रहो, शोर मत मचाओ। नैला दुरानी चीखी, अंदर चलो और मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओ। चौकीदार खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। वो बूढ़ा आदमी था। नैला के हाथ में राइफल देकर इसकी जान निकली जा रही थी। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओ, नैला ने कहा। मुझे मत मारना, मेरे मासूम बच्चे, देर मत करो। नैला खुराई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक इसी लम्हा सामने वाले बंगले से ब्रस्ट मारा गया। गोले दीवारों में पेवस्त हो गए। नैला बूढ़े चौकीदार को राइफल की जद पर लेकर बंगले के अंदरूनी हिस्से में आ गई। इस 2 मंजिला बंगले का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। दीवारों में प्लास्टर का काम हो रहा था। खिड़की और दरवाजे अभी तक नहीं लगे थे। ऊपर जाने वाले जीने के करीब पहुंचकर नैला रुक गई। तुम बंगले के पिछली तरफ किसी महफूज जगह पर चले जाओ। सामने वाले रुख से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना छल्ली हो जाओगे, नैला ने चौकीदार से कहा। और वो कांपता हुआ बूढ़ा चौकीदार पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। नैला सीढ़ियों पर दौड़ती हुई ऊपर की मंजिल पर आ गई। इसने इस बात का ख्याल रखा था कि किसी खिड़की या दरवाजे के सामने न आने पाए। वो घुटनों के बल झुककर मुख्तलिफ कमरों से होते हुए एक ऐसे कमरे में आ गई जिसकी एक खिड़की गली की तरफ थी। इसने राइफल की नार खिड़की की चौकी पर रखी और बड़ी एहतियात से दीवार की आड़ लेती हुई उठकर खड़ी हो गई। सामने वाले बंगले का बरामदा इसकी नजरों की जद में था। बंगले की तमाम बत्तियां बुझा दी गई थी, लेकिन बरामदे की स्तून की आड़ में एक आदमी खड़ा था। इसने शायद अपनी जगह पर खड़े खड़े पहलू बदला था। नैला को इसकी कमीज का दामन हवा से हिलता नजर आया था। इसने राइफल सीधी करके ट्रैगर दबा दिया। राइफल के नाल से एक के बाद 3-4 गोलियां निकली। तमाम गोलियां बरामदे की स्तून में पेवस्त हो गई। नैला दुरानी ने फायर करने के फौरन बाद अपनी पोजीशन बदली। तकरीबन इसी लम्हे बंगले से भी जवाबी फायरिंग की गई। गोलियां खिड़की में से होती हुई कमरे की छत में पेवस्त हो गई थी। अगर नैला अपनी जगह तब्दील न करती तो यकीनन निशाना बन जाती। बंगले से मुसलसल फायरिंग की जा रही थी। इस गली में वाकई तमाम बंगलों की बत्तियां बुझ चुकी थी। एक बंगले से औरतों की चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तमाम बत्तियां बुझ जाने की वजह से गली मुकम्मल तौर पर तारीकी में छा गई थी। अब्दुल कुद्दूस, सुल्तान ने सरगोशी की, तुम यहीं रुको, मैं पिछली गली में जा रही हूँ। हो सकता है वो लोग पिछली तरफ से निकलने की कोशिश करें। मेरे उस तरफ जाने से नैला पर भी दबाव कम हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, मगर अपना ख्याल रखना। अब्दुल कुद्दूस ने इसका हाथ होले से दबाकर छोड़ दिया। सुल्ताना सीने के बल रिंगती अपनी जगह से पीछे हटने लगी और फिर उठकर तेजी से दौड़ने लगी। इस लाइन में गली का पहला बंगला ज़ेरे तामीर था। बाउंड्री वाल अभी तक नहीं बनी थी। सुल्ताना इस बंगले के स्ट्रक्चर से गुजरती हुई पिछली समत आ गई। ये तमाम बंगले सिंगल पट्टी पर बने हुए थे। इनके दरवाजे पिछली गली में भी थे।
किसी ने बड़ा गेट बना रखा था और किसी ने छोटा दरवाजा ही बनाया था। इसके सामने वाली लाइन में सिर्फ 2 बंगले आबाद थे, 2-3 ज़ेरे तामीर थे और बाकी खाली प्लाट थे जिन पर खोदरो झाड़ियों ने कब्जा जमा रखा था। इस तरफ पाशा वाले बंगले के सामने 2 बंगले ज़ेरे तामीर थे, एक तो सिंगल स्टोरी थी और दूसरा डबल स्टोरी। सुल्ताना दौड़ते हुए डबल स्टोरी बंगले में घुस गई। इसे सीढ़ियां तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो तारीकी में संभल कर चलती हुई ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। इसे इस ज़ेरे तामीर बंगले में दाखिल होने या ऊपर आने में किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था। चौकीदार फायरिंग की आवाज़ सुनकर या तो कहीं भाग गया था या कहीं छुप गया था। सुल्ताना बर वक्त ही इस तरफ आ गई थी। इसने दूसरी मंजिल के कमरे की खिड़की में पोजीशन संभाली ही थी कि पाशा वाले बंगले के कमरे का पिछला दरवाजा खुला। सुल्ताना तारीकी की वजह से किसी को देख नहीं सकी थी, लेकिन इसने नजर बाहर वाले दरवाजे पर मरकूज रखी। इसे यकीन था कि जो कोई भी कमरे से निकला था उस तरफ फरार होने की कोशिश करेगा। वो राइफल संभाले तैयार खड़ी थी। सुल्ताना का ख्याल दुरुस्त निकला। कुछ ही देर बाद बंगले का बाहर वाला दरवाजा खुला और 2 आदमी बाहर निकले। इन दोनों के हाथों में राइफलें थी। सुल्तान ने अपनी राइफल सीधी करके फायर खोल दिया। गोले इन दोनों आदमियों से 1-2 फीट आगे जमीन पर लगी। उनमें से एक बुरी तरह चीख कर दोबारा दरवाजे में घुस गया और दूसरा दाएं तरफ भाग निकला। सुल्तान ने दौड़ते हुए शख्स पर फायरिंग की। वो चीख कर गिरा, लेकिन दूसरे लम्हे उठकर फिर भाग खड़ा हुआ। वो दौड़ने में लंगड़ा रहा था। सुल्तान ने फायरिंग जारी रखी, लेकिन वो साइड में निकल गया था। जो शख्स दोबारा बंगले में घुसा था, इसने पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सुल्ताना इसकी फायरिंग से महफूज रही। अलबत्ता वो खुद वक्फे से फायरिंग कर रही थी। पाशा वाला बंगला दोनों तरफ से फायरिंग की जद में था। वो लोग घिरे होने के बावजूद दोनों तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। सुल्ताना भी इन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए वक्फे से पोजीशन बदल कर फायरिंग कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ से नैला दुरानी भी इक्का दुक्का फायरिंग जारी रखे हुए थी। सुल्ताना साथ वाले कमरे में आ गई। खिड़की के करीब रुककर इसने सामने वाले बंगले पर एक ब्रस्ट मारा। इसे फौरन दूसरी तरफ से भी जवाब मिल गया। इस दौरान सुल्ताना पोजीशन बदल चुकी थी। वो दोबारा ट्रैगर दबाना ही चाहती थी कि अपने अकब में गुर्राहट सुनकर उछल पड़ी। अगर तुमने हरकत की तो छलनी कर दूंगा। राइफल फेंक दो और हाथ ऊपर उठा लो। सुल्ताना के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। इसके पीछे जो कोई भी था, इसकी राइफल की नाल सुल्ताना की गर्दन को छू रही थी। वैसे सुल्ताना को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये वही आदमी था जो गली में भागा था। सुल्ताना ने राइफल फेंक दी और दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। इस बात पर भी हैरत थी कि इसने शख्स की आहट क्यों नहीं सुनी। अब शराफत से दाएं तरफ मुड़ जाओ, इस शख्स ने गुर्राते हुए कहा। तुम बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रही हो पुरस्कार औरत, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। वो पुरस्कार औरत दूसरी तरफ है, मैं तो उसकी हेल्पर हूँ। सुल्ताना ने जवाब दिया। हेल्पर हो या जो कोई भी हो, दाएं तरफ मुड़ जाओ। वो शख्स गुर्राया। सुल्ताना गहरा सांस लेते हुए दाएं तरफ मुड़ गई। वो शख्स इसे राइफल की जद में लिए हुए दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ फायरिंग का कोई खतरा नहीं था। अब मेरी तरफ घूम जाओ। इस शख्स ने सुल्ताना की गर्दन से राइफल हटा ली। सुल्ताना ने इसके हुक्म की तामील की। वो शख्स इसे राइफल की जद में लिए खड़ा रहा। तुम्हारे साथ और कितने आदमी हैं? इस शख्स ने पूछा। 6। सुल्ताना ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। उन्होंने बंगले को घेरे में ले रखा है। तुम लोगों के बचने का कोई इम्कान नहीं। इस इम्कान का जायजा तो बाद में लिया जाएगा, लेकिन पहले तुम रुक जाओ। सुल्ताना इसके पीछे देखती हुई चीखी। वो शख्स तेजी से पीछे मुड़ा। सुल्ताना ने इस मौका से पूरा फायदा उठाया। इसने दोनों हाथ राइफल की नाल पर डाल दिए। राइफल का रुख ऊपर की तरफ करने के साथ इसने अपने हरीफ पर कोहनी की बड़ी जोरदार जड़ ठोकर लगाई। सुल्ताना ने जैसे ही राइफल की नाल ऊपर की तरफ उठाई, इस शख्स ने उंगली से ट्रैगर दब गया। राइफल से निकलने वाली गोलियां छत से टकराने लगी, लेकिन इसके बाजू पर सुल्ताना की ठोकर से राइफल इस शख्स के हाथ से निकल गई और दूसरे हाथ से मजरूह कोहनी पकड़कर चीखता हुआ दोहरा हो गया। सुल्ताना ने राइफल को लठ की तरह नाल की तरफ से पकड़ रखा था। इसे लठी की तरह राइफल घुमा दी। इस शख्स के कंधे पर बट की जोरदार जरब लगी। वो शख्स एक बार फिर बिबला उठा। सुल्ताना इस पर वार करती रही। कमरे का फर्श भी अभी तक नहीं बना था, पत्थर वगैरह फैले हुए थे। वो शख्स लड़खड़ा कर गिरा। तुमने औरत को इतना कमजोर और बुज़दिल क्यों समझ लिया था? सुल्ताना गुर्राई। अब वो इस पर ठोकरों की बारिश कर रही थी। दफातन सुल्ताना का पैर भी एक पत्थर पर पड़ा। वो लड़खड़ा गई। इसने समझने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। इसका तवाज़ुन बिगड़ गया था। वो धड़ाम से नीचे गिरी। एक छोटा सा पत्थर इसके कूल्हे के नीचे आया था, जिससे अच्छी खासी चोट लगी थी। इसके मुंह से कराहसी निकल गई। सुल्ताना को गिरते देखकर वो शख्स बड़ी फुर्ती से उठ गया था। इसने सुल्ताना की पसली पर ठोकर मारना चाहिए, मगर सुल्ताना ने बड़ी फुर्ती से इसका पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो शख्स धड़ाम से सुल्ताना के करीब ही गिरा। सुल्ताना ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते उठ खड़ी हो गई। इसने राइफल भी दोबारा अपने कब्जे में ले ली। इसने अपने हरीफ से चंद फीट दूर फर्श पर एक बस मार दिया। ये गोलियां तुम्हारा जिस्म भी छलनी कर सकती हैं। सुल्ताना गुर्राई। उठो और खिड़की के करीब जाकर अपने आदमी को हुक्म दो कि वो फायरिंग बंद कर दे। वो मेरी बात नहीं मानेंगे। वो शख्स कराते हुए बोला। करा तुम लोगों ने वो भी, और इसके साथी को जो वहशत किया था उससे भी वाकिफ है, इसलिए वो मरने को तरजीह देंगे, लेकिन मेरी बात नहीं मानेंगे। तुम कौन हो? सुल्ताना ने कहा। फिर खुद ही बोली। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम पाशा हो। हाँ मैं पाशा हूँ। वो शख्स बोला। ऐसी सूरत में वो तुम्हारा हुक्म नहीं टाल सकते। तुम इस गिरोह के सरगना हो। जल्दी करो, इन्हें फायरिंग बंद करने का हुक्म दो,
ورنہ मैं तुम्हें छलनी कर दूंगी। सुल्ताना घुर्राई। वो पाशा को दूसरे कमरे में ले आई। बंगले के रुख पर फायरिंग हो रही थी। पाशा खिड़की की आड़ में खड़ा हो गया और गर्दन बाहर निकालकर ऊंची आवाज में चीखा, राजा फायरिंग बंद कर दो, मैं पाशा हूँ और तुम लोगों को हुक्म देता हूँ कि फायरिंग बंद कर दो। नतीजा खातिर खा निकला। बंगले से फायरिंग बंद हो गई। दूसरी तरफ से नैला ने भी फायरिंग रोक दी। चलो नीचे चलो। सुल्तान ने पाशा को हुक्म दिया, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो जिंदा नहीं बचोगे। पाशा खामोशी से आगे चल पड़ा। सुल्ताना इसे राइफल की जद पर लिए हुई थी। वो ज़ेरे तामीर बंगले से निकलकर इस बंगले के सामने आ गए। सुल्ताना ने पाशा को आगे रखा था। बंगले के दरवाजे में दाखिल होते ही वो खासी मोहतात थी। अपने आदमी को हुक्म दो कि वे कमरे में जमा हो जाए और कमरे की बत्ती जला दे। सुल्ताना ने इसे की पुश्त पर राइफल का दबाव डालते हुए कहा। पाशा ने चीखकर इसकी बात दोहरा दी। कुछ देर बाद एक कमरे में बत्ती जल गई। सुल्ताना पाशा को राइफल की जद पर लिए बंगले के पहलू में ओपन स्पेस से गुजरते हुए सामने वाले रुख पर आ गई और बरामदे में रुककर नायला और अब्दुल कुद्दूस को पुकार कर कहा कि वो लोग यहाँ आ जाए। चंद ही सेकंड बाद नायला अब्दुल कुद्दूस के अंदर आ गए। इस बंगले में पाशा समेत 4 आदमी थे। वो लोग इस वक्त किसी और इलाके में दहशतगर्दी के लिए जा रहे थे। अगर नायला वगैरह को वहाँ पहुँचने में चंद मिनट की ताखीर हो जाती तो वो लोग निकल चुके होते और अब तक न जाने कितने बेगुनाहों को खाको खून में लौटा चुके होते। पाशा को जब यह पता चला कि वो सिर्फ 2 लड़कियां थी और इनके साथ मजहूल सा नौजवान था तो उसे बड़ी हैरत हुई और गुस्सा भी आया कि इन्होंने अपने आप को सरेंडर क्यों कर दिया। लेकिन वो उनमें से एक लड़की की खूंखारी देख चुका था। वो राजस्थान में वाक़ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राका तरबियत याफ्ता था। नायला दुरानी और सुल्ताना और सस्सी नामी 3 लड़कियों के बारे में इसे भी इतला मिल चुकी थी कि वो रामगढ़ के करीब एक कैंप को तबाह करके पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं। इसने तीनों के बारे में अपने साथियों से बहुत कुछ सुना था लेकिन उन्हें पहचानता नहीं था। गुज़श्ता चंद रोज़ से कराची के अखबारात में एक पुरस्कार औरत का बड़ा चर्चा था। ये औरत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ थी और अब तक कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार करवा चुकी थी। हालांकि वो सबके सब राके तरबियत याफ्ता थे लेकिन इस पुरस्कार औरत के सामने मोम के पुतलों की तरह बेबस हो गए थे। गुज़श्ता रात इसने बॉबी के गिरोह को बेबस करके पुलिस के हवाले कर दिया था। इसने रात को बॉबी को फोन किया था कि अपने आदमी को लेकर सुबह 5 बजे कुरंगी पहुंच जाए लेकिन वो नहीं पहुंचा था। वो तो सुबह के अखबारात के जरिए पता चला कि जब इसने फोन किया था इस वक्त बॉबी इस पुलिस औरत के रहमो करम पर था और अब वो इसके सर पर मुसल्लत थी। एक नहीं बल्कि 2 पुलिस औरतें। तुम लोगों को मेरा पता कैसे मालूम हुआ? हालांकि मेरी पार्टी के भी बहुत कम लोग मेरे ठिकाने के बारे में जानते हैं। पाशा ने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा। बॉबी से नायला ने जवाब दिया, हमें तुम्हारा पता कल रात ही मालूम हो गया था। बॉबी से? पाशा के लहजे में हैरत थी। लेकिन आज दिन में तो पुलिस इसके दूसरे साथियों के बारे में मालूम करती रही। इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था मगर इसने जुबान नहीं खोली थी। मुझे उस पर पूरा भरोसा था इसलिए तो मैंने अपना ठिकाना नहीं बदला। हमारा अपना तरीका कार है। नायला दुरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इससे सिर्फ एक मरतबा पूछा था और इसने तुम्हारे बारे में बता दिया था। वो चंद लम्हे खामोश रही फिर इसकी तरफ देखते हुए बोली, यहाँ क्या क्या है? बहुत कुछ है। पाशा ने जवाब दी। इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। क्या चाहिए तुम्हें? जितनी दौलत चाहो तुम्हें मिल सकती है। नायला ने अचानक आगे बढ़कर इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अगर मुझे दौलत की हवस होती तो मेरे पास और भी जराए थे। उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम जैसे बेज़मीर और वतन फरोशों का खात्मा मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। मैं जानती हूँ सबको खत्म नहीं कर सकती लेकिन जिन जिन के बारे में जानती हूँ इन्हें तो ठिकाने लगा सकती हूँ। इसी लम्हा पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर वो चौंक गए। गालिबन मोहल्ले में से किसी ने फोन पर पुलिस को फायरिंग की इत्तला दे दी थी। नायला ने इधर देखा और फिर तेजी कमरे के कोने में स्टैंड पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ी। इसने रिसीवर उठाया और पुलिस का इमरजेंसी नंबर डायल करने लगी। इसी दौरान में गली के बंगले की दोनों तरफ पुलिस की मोबाइल जा चुकी थी और पुलिस वालों के दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। नायला ने अब्दुल कुद्दूस और सुल्ताना की तरफ देखा। वो दोनों पाशा और उसके साथियों को राइफलों की जद पर लिए हुए थे और इनके चेहरों पर अजीब से तासुरात थे। हेलो ड्यूटी ऑफिसर, नायला ने दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते कहा, मैं और मेरे साथी इस वक्त पुलिस के घेरे में हैं और हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तुम कौन हो? ड्यूटी ऑफिसर के लहजे में हैरत थी। मैं वही पुरस्कार औरत, नायला ने जल्दी से कहा। इस वक्त चंद दहशतगर्द हमारी तहवील में है। पुलिस ने शायद फायरिंग की आवाज़ सुनकर या किसी और तरफ से टेलीफोन पर इत्तला पाकर बंगले को घेरे में ले लिया है। आप इस पुलिस पार्टी को वायरलेस पर हुक्म दें, मुझे मेरे साथी को बाहिफाजत यहाँ से निकल जाने की इजाज़त दी जाए। इसी लम्हा बाहर से मेगाफोन पर एक पुलिस अफसर की आवाज़ सुनाई दी। इस बंगले को चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया है। तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बसूरत दीगर तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हेलो मिस्टर ड्यूटी ऑफिसर, नायला ने रिसीवर पर कहा, आप खामोश क्यों है? इस बात का क्या सबूत है कि तुम वही पुरस्कार औरत हो जो कानून की मदद कर रही है? ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, मैंने कल रात तकरीबन इसी वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक बंगले में दहशतगर्दों के बारे में इत्तला दी थी और यह भी बताया था कि दहशतगर्दों की एक पार्टी फजर की नमाज के वक्त कुरंगी की एक मस्जिद में नमाज़ों का कत्लेआम करने वाली है। नायला ने कहा, मेरा ख्याल आपकी तसल्ली हो गई होगी। बाहर पुलिस पार्टी में वार्निंग दे रही है। इन्हें हुक्म दे के हमें यहाँ से निकल जाने दिया जाए।
میں ایسے احکامات جاری نہیں کر سکتا خاتون، مجھے ایسے احکامات جاری کرنے کا اختیار نہیں، آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اس کے بعد معاملہ طے ہو جائے گا۔ ڈیوٹی آفیسر نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نیلا نے کہتے ہوئے کریڈل دبا دیا اور ڈی آئی جی کا نمبر ملانے لگی۔ باہر سے مسلسل وارننگ دی جا رہی تھی، گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 1 منٹ بعد کال ریسیو ہو گئی۔ کال گھر کے ایک ملازم نے ریسیو کی تھی، اس نے بتایا کہ صاحب سو رہے ہیں، اس وقت انہیں جگانا ممکن نہیں۔ ایمرجنسی ہے، نیلا نے کہا، ان سے کہو شہر میں معصوم اور بے گناہ شہریوں کا خون بہ رہا ہے اور قانون کا محافظ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ یہ بات نہیں خاتون، ملازم نے جواب دیا، صاحب 1 گھنٹہ پہلے ہی باہر سے آئے ہیں، بہت تھکے ہوئے تھے، انہوں نے وردی بھی نہیں اتاری، کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں۔ ان سے کہو نیلا درانی بات کرنا چاہتی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ نیلا نے کہا، ہولڈ کیجئے، میں کوشش کرتا ہوں۔ جواب ملا۔ چند لمحے خاموشی نے پھر رسیور پہ ڈی آئی جی کی آواز سنائی دی۔ نیلا نے جلدی جلدی صورتحال سے آگاہ کیا، پھر بولی، میں پولیس کے سامنے نہیں آنا چاہتی، اس وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، ڈی آئی جی صاحب نے جواب دیا۔ نیلا نے فون بند کر دیا۔ باہر سے ایک بار پھر میگا فون پر آواز سنائی دے رہی تھی، یہ تم لوگوں کے لیے آخری وارننگ ہے، میں 5 تک گنوں گا اور اس کے بعد کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ 1 2 3 4۔ آواز خاموش ہو گئی۔ تقریباً 1 منٹ بعد میگا فون پر وہی آواز سنائی دی، مس نیلا درانی، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر بنگلے سے باہر نکل آئے، آپ کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ نیلا درانی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے عبدالقدوس کو اشارہ کیا، وہ کہیں سے رسیاں ڈھونڈ لایا تھا۔ پاشا اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے، وہ تینوں کمرے سے نکل کر گیٹ کی طرف آ گئے۔ پولیس کے جوانوں نے گلی میں پوزیشن لے رکھی تھی، یہ بھی غنیمت کی تاریکی کی وجہ سے وہ لوگ ان کے چہرے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پولیس پارٹی کا انچارج انسپکٹر فوراً ان کے قریب آ گیا۔ پلیز آپ لوگ اندر آ جائیے، ہم نے انہیں باندھ دیا ہے، نیلا نے کہا۔ تھینک یو مس نیلا، انسپکٹر بولا۔ نیلا سلطان عبدالقدوس تیز سے قدم اٹھاتے ہوئے گلی میں چلنے لگے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفل تھی۔ نیلا نے مڑ کر دیکھا، انسپکٹر اپنے آدمیوں کو لے کر بنگلے میں داخل ہو رہا تھا۔ ان کی گاڑی اسی جگہ موجود تھی جہاں چھوڑی گئی تھی۔ عبدالقدوس نے رائفلیں سیٹوں کے نیچے چھپا دی، پھر وہ تینوں اندر بیٹھ گئے۔ اسٹیئرنگ اس مرتبہ بھی نیلا نے سنبھالا تھا۔ دوسرے لمحہ گاڑی حرکت میں آ گئی، اس کا رخ عزیز بھٹی پارک کے عقبے سمجھ جانے والی سڑک کی طرف تھا۔ معزز سامعین حضرات، نیلا درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔